میں اپنے چھوٹوں کو انکریج بہت کرتا، بہت محبت۔ حالانکہ میں تو بچپن سے راحت صاحب کو دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، کیونکہ میرے دادا مرحوم خمار بارہ بنگوی صاحب سے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے، بڑے محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے، اور راحت صاحب اکثر میرے گھر بھی آتے تھے جب ہمارے اطراف میں کوئی مشاعرہ ہوتا بارہ بنکی میں یا دیوا شریف میں، تو راحت صاحب گھر ضرور آتے تھے۔ اور نور اندوری صاحب، مجھے بچپن میں یاد ہے کہ نور اندوری صاحب اور راحت صاحب وغیرہ تبھی آتے تھے۔ تو بہرحال سال 2001 میں جب اس مشاعرے کی دنیا میں میں نے قدم رکھا تو راحت صاحب سے بڑی محبتیں ملی، اور راحت صاحب نے ہمیشہ دعاؤں سے اور راحت صاحب نے یہ کہا 2 منٹ میں کرتا ہوں، ایک سیشن لائیو کرنا ہے، لائیو ہی کرتا ہوں کہ تم نے خمار بھائی کے ترنم کو قائم رکھا ہے۔ جی تو جی راحت صاحب بہت شکریہ سر۔ میرے پاس اور آئی، ہم سب ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور اب ہمیں آرڈر آ چکا ہے کہ ہمیں مشاعرہ لائیو کرنا ہے، اور جس کا براڈ کاسٹ فیس بک پر بھی ہوگا اور الگ الگ ذریعوں پر بھی اس کا براڈ کاسٹ کیا جائے گا۔ تو ہمارے ساتھ آج ہوں گے انداز امروہوی صاحب جو امروہہ سے ہیں، محمد انس فیضی صاحب جو دلی سے ہیں، بہت مشہور شاعر ہیں طنز و مزاح کے، اور فیض خمار بارہ بنکی صاحب جو خمار بارہ بنکی صاحب کے پوتے ہیں، جو بارہ بنکی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ کاشف ادیب صاحب میرے بھائی ہیں اور محبت کی شاعری کے حوالے سے ان دونوں پوری دنیا میں جانے جا رہے ہیں۔ میں بہت بہت استقبال کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں۔ شائستہ ثنا جی ہمارے ساتھ ہوں گی، ترپتی پارک جی ہوں گی جو بہت بڑی پروفیسر ہیں ایک کالج میں اور بہت محترم ہیں، اور ہمارے ساتھ ساون شکلا ہوں گے جو مہمان خصوصی ہیں۔ ہمارے ساتھ زبیر انصاری صاحب ہوں گے جو اس مشاعرے کے صدر ہیں۔ اور میں سب سے پہلے گزارش کروں گا کاشف ادیب صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ محبت کی شاعری کے لیے جانے جاتے ہیں، اور کارکرم کی شروعات محبت سے ہوگی تو انجام بھی انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا۔ کاشف ادیب صاحب۔ بہت بہت شکریہ آدرش بھائی۔ سبھی حضرات کو میرا سلام، آداب۔ سلام اور بہت شکریہ ساون بھائی۔ سب سے پہلے میں محبت کی اجازت چاہتا ہوں، اور جتنے بھی میرے بزرگ، میرے دوست، میرے بھائی موجود ہیں، ان سب کی دعائیں۔ جس شخصیت کی یاد میں یہ پروگرام کیا جا رہا ہے، میں خراج عقیدت کے طور پر 4 مصرے پیش کرتا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ آپ سب کی دعائیں۔ ارشاد بھائی۔ مطلب ہے کہ آپ جب سے گئے راحت شاعری، آپ جب سے گئے راحت شاعری، ختم جیسے ہوئی لذت شاعری۔ آپ بہت شکریہ بھائی۔ آپ جب سے گئے شاعری، ختم جیسے ہوئی لذت شاعری، ہر سخنور کا کاشف ہے کہنا یہی، ہر سخنور کا کاشف ہے کہنا یہی، آپ تھے باعث عظمت شاعری، آپ تھے باعث عظمت شاعری۔ بہت بہت شکریہ۔ ہر سخنور کا کاشف ہے کہنا یہی، آپ تھے باعث عظمت شاعری۔ 4 مصرے اور پیش کرتا ہوں آپ سب کی محبتوں کے حوالے۔ بہت شکریہ۔ مطلب ہے تو جو کر لے زبان قابو میں، تو جو کر لے زبان قابو میں، ہو یہ سارا جہان قابو میں۔ واہ۔ تو جو کر لے زبان قابو میں، ہو یہ سارا جہان قابو میں، اور پیار سے جو بھی چاہے اے کاشف، پیار سے جو بھی چاہے اے کاشف، کر لے ہندوستان قابو میں۔ پیار سے جو ہندوستان قابو میں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اور ایک غزل یہاں سے پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ فیض بھائی۔ پیار سے جو بھی چاہے اے کاشف، کر لے ہندوستان قابو میں۔ اور مطلب حاضر کرتا ہوں، سماعت کیجیے گا کہ حقیقت کیا ہے سب سمجھا چکی ہے،
حقیقت کیا ہے سب سمجھا چکی ہے، تیری تصویر سب بتلا چکی ہے، تیری تصویر سب بتلا چکی ہے. بہت بہت شکریہ. حقیقت کیا ہے سب سمجھا چکی ہے، تیری تصویر سب بتلا چکی ہے، اور تمہاری بات سے یہ لگ رہا ہے، تمہاری بات سے لگ رہا ہے ہماری بات تم تک آ چکی ہے، تمہاری بات سے یہ لگ رہا ہے کہ بات تم تک آ چکی ہے. بہت بہت شکریہ. ہماری بات تم تک آ چکی ہے. اور یہ شعر کے کوئی چمکا ہے تارا آسماں پر، کوئی چمکا تارا آسماں پر، کسی کی تاب نہ کی جا چکی ہے. کوئی چمکا ہے کسی تاب نہ کی جا چکی ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کی محبتوں کا. اور یہ شعر بھی سنیے گا کہ بہت تھا ناز جس پر باغباں کو، بہت تھا ناز جس پر باغباں کو، کلی وہ شاخ پر مرجھا چکی ہے، کلی وہ شاخ پر مرجھا چکی ہے. بہت تھا ناز جس پر باغباں کو، کلی وہ شاخ پر. بہت بہت شکریہ آپ سب کی محبتوں کا. اور یہ شعر بھی سنیں کہ تمہارا جھوٹ پکڑا جا چکا ہے. آدرش بھائی تمہارا جھوٹ پکڑا جا چکا ہے، حقیقت آئینہ دکھلا چکا ہے. تمہارا جھوٹ پکڑا جا چکا ہے، آئینہ دکھلا چکی ہے. اور شعر آخر بھی ملاحظہ کیجئے گا. بہت بہت شکریہ. تمہارا جھوٹ پکڑا جا چکا ہے، حقیقت آئینہ دکھلا چکی ہے، کہ محبت کچھ نئے کرتب دکھا کر، ساون بھائی خاص توجہ آپ کی، کہ محبت کچھ نئے کرتب دکھا کر، محبت کچھ نئے کرتب دکھا کر قیامت ہی قیامت ڈھا چکی ہے. محبت کچھ نئے کرتب دکھا کر قیامت ہی قیامت ڈھا چکی ہے. اور مقطع بھی آپ سب کی بہت بہت شکریہ بھائی. محبت کچھ نئے کرتب دکھا کر قیامت ہی قیامت ڈھا چکی ہے. اور کسی کے پاؤں کی گردش کاشف، کسی کے پاؤں کی گردش کاشف، کسی کو بیڑیاں پہنا چکی ہے. بہت بہت شکریہ. کسی کو بیڑیاں پہنا چکی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. بہت بہت شکریہ. اور ایک غزل کے چند اشعار اور آپ سب کی سماعتوں کے حوالے پیش کرتا ہوں. بہت اچھا پڑھ رہے ہو کاشف، بہت اچھا پڑھ رہے ہو. بہت ترنم میں جی میں بہت بہت شکریہ فیض بھائی آپ کی محبتیں. تو ترنم میں حکم ہوا ہے تو میں ایک غزل کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، سنیے گا. مطلب ہے کہ بیمار کو یہ دوا لا جواب ہے، بارش کو یہ دوا لا جواب ہے، ساقی تیری نظر کا نشہ لا جواب ہے. بیماری کو یہ دوا لا جواب ہے، ساقی تیری نظر کا نشہ لا جواب ہے. اور شعر خاص طور سے ملاحظہ کیجئے گا. اٹھلا کے چلنا، رکنا، نگاہوں کا پھیرنا، اٹھلا کے چلنا، رکنا، نگاہوں کا پھیرنا، محبوب کی ہر ایک ادا لا جواب ہے، محبوب کی ہر ایک ادا لا جواب ہے. تو یہ دوا لا جواب ہے، ساقی تیری نظر کا نشہ لا جواب ہے. اور یہ شعر بھی آپ سب کی محبتوں کے حوالے. لو ان کے شہر سے بھی نکالا گیا مجھے، لو ان کے شہر سے بھی نکالا گیا مجھے، میری وفاؤں کا یہ صلہ لا جواب ہے، میری وفاؤں کا یہ صلہ لا جواب ہے. بیماری کو بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. اور بہت بہت شکریہ. دوا لا جواب ہے،
ساقی تیری نظر کا نشہ لاجواب ہے. اور ایک غزل کی پڑھنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ اجازت ہو تو میں. بالکل جی 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 بالکل پڑھیے بھائی، پڑھیے بھائی. جی 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 سنیں. مطلب ہے بھائی کہ تتلی کوئی گلاب کی کیا غزل چھیڑ دی بھائی. پڑ گئے. واہ واہ. کوئی گلاب کی رنگت میں پڑ گئے. تتلی کوئی گلاب کی رنگت میں پڑ گئے. جب سے حضور آپ کی صحبت میں پڑ گئے. جب حضور آپ کی صحبت میں پڑ گئے. اور شعر سماعت کیجیے گا کہ ہم اس لیے بھی اور ترقی نہ کر سکے. ہم اس لیے بھی اور ترقی نہ کر سکے. ہم اس لیے بھی اور ترقی نہ کر سکے. بھولے تے چہرے دیکھے مربت میں پڑ گئے. واہ 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 واہ. بولے بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. چہرے دیکھے فیض بھائی بہت بہت شکریہ. مربت میں پڑ گئے. اور خاص طور سے ملاحظہ کیجیے گا کہ خود ہم نے اپنا ساتھ بہت دور تک دیا. خود ہم نے اپنا ساتھ بہت دور تک دیا. خود ہم نے اپنا ساتھ بہت دور تک دیا. آخر میں ہم بھی اپنی ضرورت میں پڑ گئے. بہت اچھے بہت اچھے. بہت بہت شکریہ آپ سب کی محبتوں کا. ساون میں بہت شکریہ. بہت ضرورت میں پڑ گئے. بہت بہت شکریہ بھائی. آخر میں ہم بھی اپنی ضرورت میں پڑ گئے. اور اس دن سے اپنے وعدے نیارے ہی ہو گئے. اس دن سے اپنے وعدے نیارے ہی ہو گئے. دن سے تیرے کوچے الفت میں پڑ گئے. واہ واہ واہ. جس دن سے تیرے الفت میں پڑ گئے. اور آخری شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے بطور خاص یہ شعر سماعت کیجیے گا ارشاد. کہ جنگل میں کوئی آدمی آیا ضرور. جنگل میں کوئی آدمی آیا ضرور. جنگل میں کوئی آدمی آیا ضرور ہے. کیوں جان گئی بغض و عداوت میں پڑ گئے. واہ 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 واہ. بہت شکریہ فیض بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کے حوصلہ افزائی کا. کیوں جانور بھی بغض و عداوت میں پڑ گئے. اظہار عشق جب سے کیا ہے زبان سے. اظہار عشق جب سے کیا ہے زبان سے. کاشف ادیب تم بھی قیامت میں پڑ گئے. کاشف ادیب تم بھی قیامت
میں پڑ گئے. بہت بہت شکریہ کاشف ادیب بھائی. بہت بہت خوبصورت آپ پڑھ رہے تھے اور آپ نے ایک فضا بنا دی ہے. آدھاور دوستو آدھاور تاون بھائی میں آ گیا, حاضر ہو گیا میں. تاون بھائی میں آ گیا. زبیر انصاری صاحب آ چکے ہیں جو ہمارے صدر مشاعرہ ہیں. جی صابن بھائی. میں یہ کہہ رہا تھا زبیر صاحب ہمارے بیچ آ گئے ہیں اور ہمارے ساتھ میں انس بھائی ہیں, فیض بھائی ہیں اور ترپتی جی ہیں ہمارے ساتھ میں. تو یہ سب بہت بڑے بڑے نام ہیں, تو دھیان میں رکھنا. آدرش اب تمہاری وہ شروع ہو گئی ہے کیونکہ انس صاحب تو بہت بڑے اینکر ہیں دیش کے. دیکھ کے سوچ کے نظامت کریے گا, ٹھیک ہے؟ جی وہی سوچ کے میں نظامت کر رہا ہوں کیونکہ ان 2 گھنٹے سے نظامت کرنا میرے لیے بہت بڑا ٹیسٹ ہے. اور چلیے شروع کیجیے. کاشف ادیب بھائی کے بعد میں اب آواز دیتا ہوں اشراق عزیزی صاحب کو, جو بھوپال سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بہت عمدہ شاعر ہیں, بہت اچھے دوست ہیں ہمارے. اشراق عزیزی صاحب. بہت بہت شکریہ کاشف بھائی اور آدرش بھائی کہ آپ نے اس ناچیز کو یاد کیا. اور سب سے پہلے صدر مشاعرہ کی اجازت طلب. اور جی اجازت ہے, بالکل سب کو اجازت ہے صاحب. پڑھیے, میں تھوڑا آن دا سفر میں رہوں گا اور میں آپ کو سن رہا ہوں اور بس معذرت خواہ ہوں میں تھوڑا. جی بالکل پڑھیے, میرے ساتھ پڑھیں. جی 4 متر جناب ڈاکٹر راحت اندوئی صاحب کی منظوم خراج عقیدت میں بطور خاص ملاحظہ کریں کہ راحت قلب و جان زندہ ہے, راحت قلب و جان زندہ ہے, شیر جان زندہ ہے. واہ, اچھا ہے, اچھا ہے. بہت شکریہ. راحت قلب و جان زندہ ہے, شیر ہندوستان زندہ ہے اور آشکارا ہے بھی آشکارا ہے خدمت اس کی. فخر اردو زبان زندہ ہے, فخر اردو زبان زندہ ہے. اور جس سے لرزا ہے جھوٹ کا مسکن, جس سے لرزا ہے جھوٹ کا مسکن, سچ کا وہ ترجمان زندہ ہے. واہ, سچ کا وہ ترجمان زندہ. بہت شکریہ. ایک مطلع اور ایک غزل کے ایک مطلع اور چند اشعار میرے خاص ملاحظہ کریں. تیری زلفوں کی چھاؤں میں پھنسے ہیں, تیری زلفوں کی چھاؤں میں ہیں, محبت کی گھٹاؤں میں پھنسے ہیں. اور عبادت پر عبادت ہو رہی ہے, مگر پھر بھی خطاؤں میں پھنسے ہیں. اور وفائیں بن گئی اپنا مقدر, وفائیں بن گئی اپنا مقدر, جفا والے جفاؤں. اور تمہاری پگڑیاں الجھی تھی جن میں, تمہاری پگڑیاں الجھی تھی جن میں کاٹے میرے پاؤں میں, وہ کاٹے میرے پاؤں میں پھنسے. اور ایک چند اشعار کے شعر شربت کی بات کرتے ہیں, شعر شربت کی بات کرتے ہیں, کتنی حیرت کی بات کرتے ہیں. اور تم محبت کی بات کرتے ہو, تم محبت کی بات کرتے, ہم عبادت کی بات کرتے ہیں. اور پشت پر تیر مارنے بات کرتے ہیں. جی بہت شکریہ.
पुष्ट पर तीर मारने की बात करते हैं और मेहमानों की कद्र से गाफिल, मेहमानों की कद्र से खैरो बरकत की बात करते हैं, मेहमानों की कद्र से गाफिल खैरो बरकत की बात करते हैं। और ये गजल की चंद अशार फिर उसके बाद इजाजत कि जब से ख्वाबों में वो आने जाने लगा, जब से ख्वाबों में वो आने जीने का मुझको भी आने लगा, और तंग दस्ती के हालात मत पूछिए, तंग दस्ती के हालात मत पूछिए, 10 बरस में ही बेटा कमाने लगा, 10 बरस में ही बेटा कमाने लगा। वाह। बेवफा जिंदगी रास आती नहीं, बेवफा जिंदगी रास आती, मौता तू ही मुझको ठिकाने लगा, मौता तू ही मुझको ठिकाने लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया इशराक भाई। अब मैं इसके बाद आवाज देता हूँ बाराबंकी से हमारे बीच फैज खुमार बाराबंकी साहब हैं, जो खुमार बाराबंकी साहब के पोते हैं और मेरे पसंदीदा शायरों में से हैं। फैज भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आदर्श साहब का बहुत बहुत अदा करना, खूबसूरत महफिल का हिस्सा बनने का। पढ़े अता करें फैज कुमार भाई, इस्तकबाल है आप। सदर मोहतरम से इजाजत चाहते हुए मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूं। फैज कुमार भाई पढ़े एतमाद के साथ पढ़े आप। आज क्या है कि दुश्मनों को माफ कर दूं क्या, दुश्मनों को माफ कर दूं क्या, वाह। खत्म सब इख्तलाफ कर दूं क्या, दुश्मनों को माफ कर दूं क्या, खत्म सब इख्तलाफ कर दूं क्या, और अब तो धुंधला गए हैं चेहरे सब, आईने और साफ कर दूं क्या। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई। अब तो धुंधला गए हैं चेहरे सब, आईने और साफ कर दूं क्या। और गजल का मतलब हाजिर करता हूँ, समाज फरमाए ये मेरे दोस्त सावन, और ये मैं मतलब हाजिर करता हूँ जुबैर अंसारी। आज क्या है कि साथ तेरे चल रहा हूँ मैं, साथ तेरे जो चल रहा हूँ मैं, जाने कितनों को खल रहा हूँ। वाह। साथ तेरे वाह 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 वाह, जाने कितनों को खल रहा हूँ मैं, और ये ना समझो कि गिरने वाला हूँ, ये समझो कि गिरने वाला हूँ, संभल रहा हूँ, समझो कि गिरने वाला हूँ। वाह 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 फैज भाई वाह 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 वाह। ये ना समझो कि गिरने वाला हूँ, एहतियातन संभल रहा हूँ मैं, साथ तेरे जो चल रहा हूँ मैं, जाने कितनों को खल रहा हूँ। वाह। शायद कोई नेटवर्क एरर हो गया है। फैज भाई हमारे साथ जुड़े हुए थे अभी। खैर कोई बात नहीं। फैज भाई जब तक हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं तब तक मैं खुद कुछ शेर सुना दूं, क्योंकि सबसे फिर मैं छोटा हूं, उसके बाद सीनियर शोरा है हमारे, ताबन भाई हैं, अंदाज साहब हैं, मोहम्मद अनस फैजी साहब हैं, तो मैं चाहता हूं कुछ सुना दूं सदरे मुशायरा से। बिल्कुल 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 ये सही फायदा उठा लिया। इजाजत है भाई, पढ़िए पढ़िए एतमाद के साथ पढ़े भाई।
मतला समाप्त फरमाएं। गैर को तुम गले लगाते हो, गैर को तुम गले लगाते हो, दिल जलाकर सुकून पाते हो। वाह गैर को तुम गले लगाते हो, दिल जलाकर सुकून पाते हो। खिलते देखा गुलाब तब समझा, खिलते देखा गुलाब तब समझा, इस तरफ तुम भी आते जाते हो। अरे वाह वाह खिलते देखा गुलाब, बहुत शुक्रिया। खिलते देखा गुलाब तब समझा, इस तरफ तुम भी आते जाते हो। कैसे मैं बेवफाई याद रखूं, कैसे मैं बेवफाई याद रखूं, मुश्किलों से तो याद आते हो। भाई वाह वाह, बहुत अच्छा है भाई, मुश्किलों से याद आते हो। मुश्किलों बहुत से अच्छा बहुत अच्छा भाई। भाई वाह 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 वाह, मुश्किलों से तो याद आते हो। नूर हर सिमत फैल जाता है, नूर वाह, हर सिमत फैल जाता है। तुम कुछ इस तरह मुस्कुराते हो, हर सिमत फैल जाता है। तुम कुछ इस तरह मुस्कुराते हो। चांद बहुत तारे, अच्छा है। चांद तारे गजल सुनाते हैं, वाह, चांद तारे गजल सुनाते हैं। छत पे जब तुम टहलने आते हो। अरे वाह वाह क्या क्या है भाई, वाह वाह वाह, 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 क्या चांद अच्छा तारे है, गजल वाह। सुनाते हैं, गजल छत पे जब सुनाते तुम हैं। चलते आते हो। बहुत क्या बहुत कहना शुक्रिया। है, चांद बहुत तारे अच्छे, बहुत अच्छे। गजल सुनाते हैं। छत पे जब तुम टहलने आते हो, गैर को तुम गले लगाते हो, दिल जलाकर सुकून पाते हो। क्या अच्छा है, एक गजल और मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। जी जी, अच्छा, इरशाद इरशाद इरशाद। गजल की आखिरी हद तक घसीट लाऊंगा, वाह, गजल की आखिरी हद तक घसीट लाऊंगा, तब कहीं जाके तुझे शायरी सुनाऊंगा। अरे वाह 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 वाह, की हद तक घसीट लाऊंगा, तब कहीं जाके तुझे शायरी सुनाऊंगा। बहुत तलाश अच्छा, करता रहूंगा तुम्हारे होने की, वाह, तलाश करता रहूंगा तुम्हारे होने की। मैं जख्म भरने की खुशियां नहीं मनाऊंगा, क्या अच्छा, तलाश करता रहूंगा तुम्हारे होने की। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा है, मैं वाह जख्म वाह, भरने की, मैं जख्म भरने की खुशियां नहीं मनाऊंगा। अजीब दुख है वाह वाह, कि जिसकी तुझे खबर न लगे, अजीब वाह, दुख है ठीक कि दुख है। जिसकी तुझे खबर न लगे। तुम्हारे सामने कैसे मैं मुस्कुराऊंगा, क्या हाँ अच्छा, हाँ हाँ, अजीब दुख है कि वाह, जिसकी तुझे खबर न लगे। तुम्हारे वाह, वाह, सामने कैसे मैं मुस्कुराऊंगा। मैं वो चिराग हूँ जिसको नहीं जलाया गया, मैं वाह, वो चिराग हूँ जिसको नहीं जिसको जलाया नहीं गया। जलाया। अगर जला तो बहुत रोशनी लुटाऊंगा, अच्छा है बहुत अच्छा है। क्या बात है, क्या अच्छा है, नहीं वाह, जलाया गया। बहुत बहुत वाह, क्या मैं वो बात है। चिराग हूँ जिसको नहीं बहुत जलाया गया। अगर जला तो बहुत रोशनी लुटाऊंगा। फिर एक बार जरा और देख लो मुझको, फिर एक बार वाह, जरा और देख लो मुझको। तुम्हारे गांव कहाँ रोज रोज आऊंगा। अरे वाह वाह वाह, क्या अच्छा है, वाह, वाह, बहुत अच्छे। तुम्हारे वाह, गांव कहाँ रोज रोज आऊंगा। गरज नहीं है अभी आंखों में भरे रखना, वाह, गरज नहीं है अभी आंखों में भरे रखना। मैं अपने मोती किसी और दिन लुटाऊंगा। क्या हाँ, बात है, बहुत अच्छा है बहुत अच्छे, बहुत अच्छा है। किसी और दिन लुटाऊंगा। और अगर आप लोगों की इजाजत हो तो बस एक गजल मैं सुनाऊं, उसके बाद हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं भाई। मतला है, गजल के मिसरे को मिसरे से जोड़ा जाता है, वाह, गजल के मिसरे को मिसरे से जोड़ा जाता है। तमाम रात गमों को निचोड़ा जाता है। वाह वाह वाह। गजल के मिसरे को मिसरे से वाह। जोड़ा जाता है। क्या अच्छा, तमाम रात गमों को निचोड़ा जाता है। पुराने जाल से बाहर निकलना मुश्किल है, पुराने जाल से बाहर निकलना मुश्किल है। बाहर निकलना मुश्किल, इसीलिए तो रवायत को तोड़ा जाता है,
वाह अच्छा। वाह वाह, पुराने जाल क्या से रिवायत चिकन सी, अरे वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे आदर्श। बहुत अच्छा बहुत आदर्श बहुत भाई, वाह। शुक्रिया अनस फैजी साहब, आपकी दुआएं मुझ तक पहुंच रही हैं। काशिफ भाई, सावन भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छे अरे भाई, बहुत बहुत अच्छा। कमाल पढ़ रहे हैं, पुराने कमाल का जाल पढ़ से रहे हैं। बाहर निकलना मुश्किल है, इसीलिए तो रवायत को तोड़ा जाता है। क्या दिखा अच्छा, दिया मेरे दुश्मन ने दोस्ती करके, वाह वाह वाह, दिखा दिया मेरे दुश्मन ने दोस्ती करके, गुरूर टूटता कब है ये तोड़ा जाता है। ये तोड़ा अच्छा जाता है, है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। दिखा दिया बहुत मेरे अच्छा है, दुश्मन ने बहुत अच्छा, दोस्ती वाह करके, वाह वाह, गुरूर टूटता कब है ये ये तोड़ा तोड़ा जाता है। और ये शेर उतर गए हैं तो अब जीतना ही मंजिल है, उतर वाह, गए हैं हाँ। तो अब जीतना तो ही अब मंजिल जीतना है। ही मंजिल है। कहाँ यूं हमसे भी मैदान छोड़ा जाता है। क्या अच्छा, अरे वाह 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 वाह, वाह वाह भाई वाह, वाह उतर वाह, गए हैं तो वाह अब बहुत जीतना अच्छा, ही मंजिल है। कहाँ यूं वाह, हमसे भी मैदान छोड़ा जाता है, उठाना पड़ता वाह है आता फिर है। हाथ, गर नहीं सुधरे। वाह, हाँ हाँ उठाना पड़ता है फिर हाथ, गर नहीं सुधरे। हाँ, पहली बार में हाथों को जोड़ा जाता है। अच्छा हाँ, है, हाँ बहुत हाँ, अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा अच्छा है, एग्रेसिव शेर वाह है। वाह, हाँ, बहुत पहली अच्छा, वाह बार में हाथों को जोड़ा जाता है। यहाँ पे हिंदू भी होंगे, यहाँ मुसलमान भी। वाह वाह, यहाँ पे हिंदू भी होंगे, यहाँ मुसलमान भी। ये शायरी है, यहाँ सबको जोड़ा जाता है। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, वाह, यहाँ पे हिंदू भी सच है, होंगे, वाह, यहाँ मुसलमान भी। वाह वाह वाह, ये शायरी वाह, है, यहाँ सबको जोड़ा जाता है। और आखिरी शेर, लिखा था अच्छा, नाम जहाँ तूने खूने दिल से मेरा, वाह, लिखा था नाम जहाँ जहाँ तूने तू, खूने दिल से मेरा, वहीं से इश्क के कागज को मोड़ा जाता है। हाँ, क्या बात क्या है, कह रही है, वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह वाह बहुत वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत अनस अच्छा, फैजी बहुत साहब। अच्छा, और उसके बाद मैं अब आवाज देता हूँ मोहम्मद अनस फैजी साहब आपको, कि आप कुछ माहौल, क्योंकि आपको आपका जलवा सब देखते हैं, आपका जलवा, और आपको सुनने के लिए लोग। एक्चुअल में आदर्श ये कहना चाहता है कि मैंने माहौल बिगाड़ दिया है, आप ही संभालो। जी 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 सावन भाई जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है। तो जनाबे सदर जुबैर अंसारी साहब की इजाजत। जी अनस फैजी भाई, खासदार, मोहब्बत में आपकी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पढ़ें पढ़ें अनस भाई। बहुत और शुक्रिया। क्या अंदाज आप भाई, आप हमारे तो हमारे सीनियर, नायाब, बहुत प्यार आप करने तो वाले, फैज, काशिफ, सावन, अभिषेक, आदर्श, तो मैं पेश कर रहा हूँ। जी जी सर। हर तरफ जी, डंका बजेगा बस तुम्हारे नाम का, वाह, हाँ हाँ हाँ, हर तरफ डंका क्या अच्छा, बजेगा धन- बस तुम्हारे बस नाम तुम्हारे का, नाम, भीड़ में इन शायरों की खुद को आगे पाओगे। हम्म, हाँ हाँ हाँ, रात बेगम कह रही थी चूम कर टकला मेरा, देख लेना अब तुम भी पॉपुलर हो जाओगे। वाह 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 वाह। ये बड़ी अलग तरह का इस्तेफादा किया है मैंने। बहुत बिल्कुल अच्छा है बिल्कुल, अनंत भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत वाह शुक्रिया। अच्छा है। हर तरफ डंका बजेगा वाह, बस तुम्हारे नाम का, भीड़ बहुत में अच्छा इन है, शायरों की खुद को आगे पाओगे। रात बेगम कह रही थी घूम कर टकला मेरा, देख क्या बात लेना है, अब तो तुम भी पॉपुलर हो जाओगे। पॉपुलर और हो जिंदाबाद, जाओगे। लड़कियां ख्वाब देखती हैं बहुत बड़े बड़े कि सलमान मिलेगा, शाहरुख मिलेगा। मिलता क्या है वो इन चार मिसरों में देखें। वो अकड़ती जी जी, फिर रही हो मुझको ठोकर मार कर, क्या कह रही है, एक दिन किस्मत पे अपनी जाने मन रोना ही है। क्यों हाँ, अकड़ती फिर रही वाह वाह हो वाह, मुझको ठोकर मार कर, एक दिन किस्मत पे अपनी जाने मन रोना ही है। देख लो जो देखती हो ख्वाब शाहरुख खान के, बाद में खाला के लड़के से लगन होना ही है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, भाई वाह 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 वाह, वाह वाह बाद में खाला के लड़के, थोड़ा सा इस्लामिक है ये। वाह 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 वाह। बाद
में मजहबी खाला बातें के नहीं लड़के से लगन होना ही है। और 4 मिसरे देखिए, सैनिटाइजर आजकल किस तरह से इस्तेमाल होता है, किस तरह उसने किया था यूज सैनिटाइजर, किस तरह उसने किया था यूज सैनिटाइजर, जो कभी मैं कर ना पाया उसने वो सचमुच किया। अपने घर तो डरते डरते पुछ किया बस एक बार, और मेरे घर जो आया उसने पुछ 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 किया। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। इस तरह उसने किया था यूज सैनिटाइजर, जो कभी मैं कर ना पाया उसने वो सचमुच किया। अपने घर तो डरते डरते पुछ किया बस एक बार, और मेरे घर जो आया उसने पुछ 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 किया। और पेट निकला हुआ, आंखों पे है मोटा चश्मा। पेट निकला हुआ, आंखों पे है मोटा चश्मा। पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है। मुझको ठुकराया था जिसने कभी गंजा कहकर, उसके शौहर को जो देखे तो खुशी होती है। खुशी होती है। वाह 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 वाह। उसके क्या बात है शौहर भाई, को वाह जो, वाह वाह। बहुत शुक्रिया, उसके शौहर को जो देखे तो खुशी होती है भाई, वाह 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 उसके वाह। शौहर को जो देखें तो खुशी होती है। और 4 मिसरे और देखें कि उसके शौहर को जो देखें तो खुशी होती है। और शबे विसाल में बीवी पे हंस दिया यारो, शबे विसाल में बीवी पे हंस दिया यारो, अब उसके बाद की हालत नहीं बताने की। मैं पिटते पिटते यही कह रहा था बीवी से, मैं क्या करूं मेरी आदत है मुस्कुराने की। भाई वाह मैं वाह 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 क्या वाह। करूं वाह मेरी अनस फैजी आदत भाई है वाह। मुस्कुराने की। बहुत शुक्रिया। मैं क्या करूं मेरी आदत है मुस्कुराने की, एक शायरे अरब से ये कह रहे थे शायर, एक शायरे अरब से ये कह रहे थे शायर, कर हो सके हमारा हाथों में हाथ ले ले, पढ़ पढ़ के थक चुके हैं हम शायरी वतन में, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। वाह। पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, हमारे यहाँ तो भीड़ लग जाती है ना जब कोई शायर अरब आता है, तो पढ़ पढ़ के थक चुके हैं हम शायरी वतन में, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। किसका किसका चक्कर है पास के शराफत से, कब पड़ोस के घर की कुंडियां नहीं खुलती। किसका किसका चक्कर है पास के शराफत से, कब पड़ोस के घर की कुंडियां नहीं खुलती। सब्र तो करो थोड़ा, सब बताएगी शब्बो, सब बताएगी शब्बो, सब्र तो करो थोड़ा। 2 घड़ी की चाहत में लड़कियां नहीं खुलती। वाह 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 वाह। अरे वाह 2 वाह वाह घड़ी वाह की वाह वाह। चाहत में लड़कियां नहीं खुलती। और मालूम है सब एबी, अब मुंह नहीं खुलवाओ, किस तरह यहाँ किसका अरमान निकलता है। दफ्तर से निकलते हैं शाहीन के अब्बू जब, तब पास के कमरे से फैजान निकलता है। वाह। तब पास के कमरे से फैजान निकलता है। और आखिरी कथा उसके बाद जहमत तमाम, मुलाहिजा करें शहबर रसूल साहब का मिसरा है कि मैंने भी देखने की हद कर दी। उनका शेर है, मैंने भी देखने की हद कर दी, वो भी तस्वीर से निकल आया। अब वाह तस्वीर क्या बात देखिए है। सावन, अंदाज भाई, जुबैर साहब। मारने लग गए मुझे साले, मारने हाँ, लग गए लगे मुझे मुझे साले, साली और सास ने सितम ढाया। मेरा हाँ, ससुरा जो मर चुका कब का, वो भी तस्वीर से निकल आया। निकल आया। क्या मारने बात है भाई, लग गए मेरा मुझे ससुरा ने मर साले, चुका कब का। साली और सास ने सितम ढाया। मेरा ससुरा जो मर चुका कब का, वो भी वो भी तस्वीर से निकल आया। क्या बहुत बहुत शुक्रिया। समख राशि के लिए माफी। आदर्श। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने पूरी फजा को जो है अब अलग
اونچائی پر لے گئے آپ, مزہ آ گیا بالکل آپ کو سن کر. اور اس کے بعد میں آواز دے رہا ہوں انداز امروی صاحب کو کہ وہ اپنے کلام سے استقبال ہے. ارے انس بھائی کو نوازے. سب سے پہلے میں محترم اپنے چھوٹے بھائی آدرش دوبے صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس محفل میں جو علامہ راحت اندوری صاحب کے نام سے وابستہ یاد میں ہم آج ہی پڑھ راحت بھائی کی راحت صاحب کے بارے میں ایک بات میں اور بتاؤں, اس کے بعد پھر میں اپنا کلام کر آتا ہوں. یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں, ہماری ایج کے لوگ بہت کم جانتے ہیں کہ راحت صاحب ترنم میں پڑھا کرتے تھے کسی زمانے میں. اور جی انس بھائی اس کی دے رہے ہیں, مطلب اپروو کر رہے ہیں میری بات کو کہ, اور ترنم ان کا اتنا شاندار تھا ترنم. میرے والد محترم نے مجھے یہ بتایا کہ ان کے ساتھ میرٹھ میں جو نوچندی میں مشاعرے ہوتے تھے, اور جس مشاعروں میں بشیر بدر صاحب اس کے کنوینر ہوا کرتے تھے, ان مشاعروں میں میرے والد صاحب کے ساتھ ترنم میں انہوں نے کلام پڑھا. اور آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں کہ خمار بارہ بنگی صاحب کے پوتے اس وقت اس محفل میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ان کو جان کر یہ خوشی ہوگی اور حیرانی ہوگی کہ ایک مشاعرے میں کرشن بہاری نور صاحب, خمار بارہ بنگی صاحب اور شمیم جے پوری صاحب نے راحت اندوری صاحب سے یہ کہا کھانے کے وقت جب مشاعرہ نمٹ گیا کہ تمہارے کلام کو ترنم کی ضرورت نہیں, نہ ترنم کے کلام پڑھو گے تب بھی تم محفل پر چھا جاؤ گے. اور انہوں نے ان کے اس مشورے پر اتنا عمل کیا کہ ہم لوگوں نے آج تک ان کا ترنم نہیں سن پائے, کہیں نہیں سن پائے. اور اس دور کے ہی شاعروں نے ان کا ترنم لائیو سنا ہے. اس وقت اتنا سب کیمرے وغیرہ بھی اتنے اسٹرانگ نہیں ہوا کرتے. باہر سب سے پہلے میں بہت سی باتیں ہیں, گھنٹوں ان پہ بات کی جا سکتی ہے کیونکہ راحت صاحب شخصیت ہی ایسی تھی. صدر محترم سے اجازت کے ساتھ جی عطا کریں 4 مصرے عقیدت کے طور پر میں راحت صاحب کی یاد میں پیش کرنا چاہوں گا. جی بھائی فکر و فن کی راحت رخصت ہوئی راحت کے ساتھ. انس بھائی, فکر و فن کی راحت رخصت ہوئی راحت کے ساتھ, اس کا ہر ایک روز گزرا ایک نئی شہرت کے ساتھ. اس کا ہر ایک روز گزرا ایک نئی شہرت کے ساتھ. جس قدر چاہت سے غزلیں اس کی سنتے تھے سبھی, جس قدر چاہت سے غزلیں اس کی سنتے تھے سبھی, کون اب غزلیں سنے گا اس قدر چاہت کے ساتھ. واہ بات, بہت عمدہ. سنے گا اس قدر بہت شکریہ آداب. فکر و فن کی راحت رخصت ہوئی راحت کے ساتھ, اس کا ہر ایک روز گزرا ایک نئی شہرت کے ساتھ. جس قدر چاہت سے غزلیں اس کی سنتے تھے سبھی, کون اب غزلیں سنے گا اس قدر چاہت کے ساتھ. شکریہ. اب میں اپنی غزل پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. یہ بھی اس کے کچھ مصرے, کچھ شعر صاحب کی مطلب پیش خدمت ہے کہ اس کے چلے جانے کا. راحت صاحب بیمار رہتے تھے, 2 ہارٹ اٹیک, اور اکثر
अपने जश्न दौरी में भी ये कहा था कि जश्न आपने सही वक्त पे कर लिया, नहीं तो यादगार राहत बना रहे होते आप। तो उस जश्न में ये कहा था उन्होंने। तो इस हवाले से आप ये शेर सुनिए। जब हम ये महसूस करते थे कि राहत साहब की तबीयत, कई बार मैंने सोचा कि मैं कहूँ कि अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, कि क्योंकि आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं, हम आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन अल्लाह का जैसा हुक्म वो होता है। बहरहाल मतलब सुनिए, उसके चले जाने का जब भी खटका लगता है, उसके चले जाने का जब भी खटका लगता है, चलता फिरता शहर अचानक तन्हा लगता है। चलता फिरता, शुक्रिया। उसके चले जाने का जब भी खटका लगता है, खटका लगता है, चलता फिरता शहर अचानक तन्हा लगता है। और ये शेर भी सुने, मैं भी अपनी वालदा से और आप सब लोग भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। राहत साहब भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। शुरू में मैंने एक वाक़या सुनाया था, ये सुने। उसके चले जाने का जब भी खटका लगता है, चलता फिरता शहर अचानक तन्हा लगता है। शेर सुने, पेशानी क्या माँ की चूमी घर आते ही मैंने, पेशानी क्या माँ की चूमी घर आते ही मैंने, घर में ही मैं हज कर बैठा ऐसा लगता है। घर में ही सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे घर में ही मैं हज कर बैठा ऐसा लगता है। और सन्नाटों के हवाले से राहत साहब ने भी शेर कहा, एक मामूली सा शायरी का तालीब ये शेर पेश कर रहा हूँ कि सन्नाटों में चीखे हैं सुनना तो चाहे, सन्नाटों में चीखे हैं सुनना तो चाहे कोई, अब तो हर कानों वाला भी बहरा लगता है, अब तो हर कानों वाला भी बहरा लगता है। और शेर देखेंगे, जिसके आंसू देखे हमने पहुंच दिए वो फौरन। राहत साहब क्या करते थे, और जिसके आंसू देखे हमने पहुंच दिए वो फौरन, इस दौलत को पाने में क्या पैसा लगता है, इस दौलत को पाने में क्या पैसा लगता है। और एक शेर ये भी सुने, जब से सियासी शेर हो गया है कि जब से नेताजी घूमे हैं मेरे शहर में आकर, जब से नेताजी घूमे हैं मेरे शहर में आकर, तब से झगड़ा होने का अंदेशा लगता है, तब से झगड़ा होने का अंदेशा लगता है। शुक्रिया अनस भाई। यह देखिए, कोई भी शायर जब कलाम पढ़ें तो मैं ये चाहूँगा, मैं अपने लिए नहीं करा, लेकिन क्योंकि हम ऑनलाइन सब पढ़ रहे हैं, तो जो एक महफिल का रूबरू होने का जो लुत्फ होता है वो हम इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम तमाम शायर जो हैं वो एक दूसरे को सुने तो एक दूसरे को एहसास दिलाएं कि ये महफिल जिंदा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, स्वागत है। ये आने वाले शायरों के लिए मैं तमाम शायरों से कहना चाह रहा हूँ जी। उसके चले जाने का जब भी खटका लगता है, चलता फिरता शहर अचानक तन्हा लगता है। शेर देखिए, मुझसे झूठ वो बोल रहा है मुझको है मालूम, मुझसे झूठ वो बोल रहा है मुझको है मालूम, फिर भी उसका झूठ मुझे क्यों सच्चा लगता है, फिर भी उसका क्या बात है, क्या बात अच्छा लगता है। ये प्यार की इंतहा होती है किसी के झूठ भी लोगों को अच्छा लगने लगता है। और ये शेर देखें कि बिल्कुल नई बात कहने की कोशिश किया है कि बिल्ली रास्ता काट गई तो रोक लिया कदमों को, बिल्ली रास्ता काट गई तो रोक लिया कदमों को, मंजिल तक जाने में फिर तो अरसा लगता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। जी जी,
मंजिल तक जाने में फिर तो अरसा लगता है। और आखिरी शेर देखें, मक्ता की जब भी खुशियां हाथ मेरे आ जाती अंदाज, जब भी खुशियां हाथ मेरे आ जाती हैं अंदाज, गम का हमला हो ना जाए डर सा लगता है, गम का हमला हो ना जाए डर सा लगता है, उसके चले जाने का जब भी खटका लगता है, चलता फिरता शहर अचानक तन्हा लगता है। एक गजल के दो तीन शेर और सुनाना चाहूंगा, उसके बाद आपकी जहमत। जी शुक्रिया। जैसा कि बहुत पहले ये मैंने गजल कही थी, लेकिन आज के पस मंजर में भी ये गजल अपने आप में फिट बैठती है। आज हम वो महफिलें नहीं हैं, कल 15 अगस्त है स्वतंत्रता दिवस, वो भी इसी तरह मनाया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम। लेकिन ये शायर हैं और ये लोग हैं, सब के अपने अपने तमाम मामला अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल ये शेर मतलब सुनिए और इसको आज के हालात पे इसको महसूस कीजिए कि जिनके कब्जे में पल नहीं होते, जिनके कब्जे में पल नहीं होते, उनके हिस्से में कल नहीं होते, कल नहीं होते। बहुत अच्छे, उनके हिस्से में कल नहीं होते। आज ऑनलाइन मुशायरे के जरिए तमाम अदीब, तमाम स्कॉलर्स जो हैं पलों को कब्जे में करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कल भी उनके कब्जे में हो सके। जिनके कब्जे में पल नहीं होते, उनके हिस्से में कल नहीं होते। और ये शेर देखें, सरहदों पे तनाव है, देश में भी तनाव है, आपसी बहुत रंजिशें हैं, और उन तमाम सांप्रदायिक ज़हनियतों के नाम ये शेर इस महफिल के हवाले से, जिनके कब्जे में पल नहीं होते, उनके हिस्से में कल नहीं होते। वो शेर यह है कि फेंक दे हाथ से ये तलवारें, फेंक दे हाथ से ये तलवारें, मसले ऐसे हल नहीं होते। फेंक दे हाथ से ये तलवारें, मसले ऐसे हल नहीं होते। और शेर देखें, सोच कर थक चुका हर एक करीब, सोच कर, अनस भाई, सोच कर थक चुका हर एक करीब, झोपड़े क्यों महल नहीं होते। अच्छा है, बहुत अच्छा है, झोपड़े बहुत अच्छा अंदाज भाई। वाह 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 वाह। और ये शेर देखें और इसकी सच्चाई आपके दिल को छुएगी इंशाअल्लाह। और देखें कि जहर होता है उसके सीने में, वाह, जहर होता है उसके सीने में, जहर होता है उसके सीने में, जिसके माथे पे बल नहीं होते, जिसके माथे पे बल नहीं होते। जहर होता है उसके सीने में, जिसके माथे जिसके माथे पे बल नहीं होते, जिसके माथे पे बल नहीं होते। ठोकरों से, शुक्रिया शुक्रिया, ठोकरों से वफा जरूरी है, ठोकरों से वफा जरूरी है, रास्ते यूं सहल नहीं होते, रास्ते यूं सहल नहीं होते। जिनके कब्जे में पल नहीं होते, उनके हिस्से में कल नहीं होते। और एक शेर और एक मतला सुना के फिर मैं इजाजत चाह रहा हूँ। आदर्श दुबे जी ने कहा था कि मोहब्बत, तमाम शेरों में मैंने मोहब्बत की ही बात की, अब बाकी शायर भी मोहब्बत का पैगाम इस महफिल से दे रहे हैं। फैली है इस जहान में नफरत इधर उधर, फैली है इस जहान में, जुबैर अंसारी साहब, फैली है इस जहान में नफरत इधर उधर, आओ चलो बिखेरें मोहब्बत इधर उधर, आओ चलो बिखेरें
मोहब्बत इधर उधर। फिर देखें कि अच्छा पैगाम है भाई, ये अच्छा पैगाम है। जिंदाबाद जी, जिंदाबाद, जी, बहुत अच्छा पैगाम, पैगाम शानदार पैगाम, जिंदाबाद। फैली है इस जहान में नफरत इधर उधर, आओ चलो बिखेरें मोहब्बत इधर उधर, खबरों के चैनलों पे शिकंजा है झूठ का, वाह खबरों के चैनलों पे शिकंजा है झूठ का, पर्दे से हो गई है हकीकत इधर उधर, पर्दे वाह से वाह हो गई है हकीकत हकीकत इधर इधर उधर, इतना गिरेगा आदमी सोचा न था कभी, इतना गिरेगा आदमी सोचा न था कभी, लाशों पे हो रही है सियासत इधर उधर, लाशों पे हो रही है सियासत इधर उधर, और ईमान पर न आए मेरी आंच ए खुदा, ईमान पर न आए मेरी आंच ए खुदा, भटका रही है मेरी जरूरत इधर उधर, भटका रही है मेरी जरूरत इधर उधर। और शेर देखें कि एक दिन हमारे घर भी जरा आके देखिए, एक दिन हमारे घर भी जरा आके देखिए, मिलती नहीं है प्यार की दौलत इधर उधर, मिलती नहीं है प्यार की दौलत इधर। और ये मक्ता है, और ये मक्ता आपके लिए नहीं है, सुन लीजिए। और तुमने नहीं नवाजा, नहीं तुमने नहीं नवाजा मुझे इसका गम नहीं, अंदाज वैसे ही शोहरत इधर उधर, अंदाज की है वैसे ही शोहरत इधर उधर, फैली है इस जहान में मोहब्बत इधर, आओ चलो बिखेरें मोहब्बत इधर उधर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम शुरा का, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा अंदाज भाई, बहुत वाह। बहुत शुक्रिया अंदाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और दुआ याद रखें। और इस डाइस से कल के दिन की आने वाला दिन है हमारी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की, मैं आप तमाम लोगों को विश करता हूँ, अल्लाह इस बीमारी से हम तम लोगों को निजात दिलाए, और तमाम जश्न हम जिस खुशी के साथ, जिस जोश के साथ, जिस बलबले के साथ हम मनाते थे, चाहे मजहबी हो चाहे राष्ट्रीय कौमी त्योहार हो, उनको हम फिर वैसे ही मनाएं। सब अपने घरों पर सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से उर्दू गजल पेश कर रहे थे अंदाज अमरोहवी साहब, तो माहौल को थोड़ा बदलते हैं, अब हिंदी की तरफ चलते हैं। हिंदी कविता, और हिंदी कविता में एक कवित्री हैं जो बड़ी मोहतरम है और बड़ी आदरणीय है, उनको मैं आवाज देता हूं। इकबाल अशर साहब का एक शेर से उनको मैं आवाज देता हूं कि बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे, बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे, सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे, उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया मुझे। पारिक जी से मिले। बहुत बढ़िया, शुक्रिया आदर्श। आपको मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है? मैम बहुत अच्छी आ रही है आवाज। बिल्कुल शुक्रिया। मैं सबसे पहले मेरे सभी बड़े आदरणीय लोगों को नमस्ते कहूंगी, जिनको मैं काफी देर से सुन रही हूँ, और मुझे बेहद, मैं इस आनंद शब्द का इस्तेमाल करूंगी यहाँ पे। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया अनस सर का, अंसारी सर का और अंदाज सर का, जिनको सुन के मुझे बहुत आनंद आया, और उर्दू अदब और उर्दू लहजा और शब्द का उच्चारण भी मैं आप लोगों के साथ बेहतर सीख पाऊंगी। इसके लिए मुझे आज बहुत बहुत प्रसन्नता है। तो मैं अपनी शुरुआत आप लोगों को एक तरह से अपना गुरु मानते हुए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं पहले ही आप लोगों को धन्यवाद दे देना चाहती हूँ मुझे सुनने के लिए। और ये पहली बार होगा कि मैं किसी मंच से, किसी लाइव सेशन से अपनी लिखी कविता को किसी भी स्थान पर पढ़ रही हूँ। तो इस वक्त आज का 14 अगस्त का दिन और आप लोगों का साथ मुझे और आप सभी के लिए बहुत शुभ हो। इसके लिए मैं एक छोटी सी कविता या एक बात आप लोगों के सामने रखती हूँ। सर, नफरत की खाद में भी क्या कभी पेड़ पनपते हैं? नफरत की खाद में भी क्या कभी पेड़ पनपते हैं?
मीठे फल यूं ही नहीं जन्मते हैं, मीठे फल यूं ही नहीं जन्मते हैं, जो आपको आपसे ज्यादा समझ ले, जो आपको आपसे ज्यादा समझ ले, ऐसे लोग दरअसल अब नहीं जन्मते हैं। जो आपको आपसे ज्यादा समझ ले, ऐसे लोग दरअसल अब नहीं जन्मते हैं। एक कभी कभी देखने पर बहुत चर्चा होती है कि हम देखें, हम अपने आसपास को देखें। तो मैंने बहुत पहले, शायद 2-3 साल पहले, कुछ पंक्तियां लिखी थी जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। देखना तो सब चाहते हैं, देखना तो सब चाहते हैं, पर देखना ही देखने से रोकता है। देखना तो सब चाहते हैं, पर देखना ही देखने से रोकता है। वो जो हमसे मिलता है वो कहता है, वो जो हमसे मिलता है वो कहता है, क्या तुम मेरे अगले इश्क का धोखा हो। वो जो हमसे मिलता है वो कहता है, क्या तुम मेरे अगले इश्क का धोखा हो। अभी मैंने अब हमारे बहुत प्रिय राहत साहब के जाने पर, मैं बहुत छोटी थी तब, मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे राहत साहब से परिचित कराया था, और अब मैंने उनके बारे में, अब मैं कहूंगी कि मैंने उनको जानना और पढ़ना शुरू किया बहुत ईमानदारी से। उनके जाने के बाद मेरी पीढ़ी वो पीढ़ी है जो बहुत ऐसा वर्ग जो राहत साहब को अब पढ़ेगा, और शायद हमारी पीढ़ी उसको और ज्यादा बेहतर जिंदा रखने की भरसक कोशिश करेगी। तो मैंने राहत साहब की एक छोटी सी याद में कुछ छोटा सा लिखा था। जो अपनी नजरों से गिरता है, वो अपनी नजरों से गिरता है, वह ना फिर राहत को समझता है, न फैज को पढ़ता है, न उसे जगजीत की गजलें भाती हैं, ना ही उन्हें अमृता समझ में आती हैं। वाह। तो अपनी ही नजरों से गिरता है, वह मुर्दा जिंदा बचता है। जो अपनी ही नजरों से गिरता है, वह मुर्दा जिंदा बचता है। आप एक हुकूमत पर मैं आखिरी अपनी कविता आप लोगों को पढ़ना चाहूंगी। हुकूमत हाँ बोल दे तो गर्दन सजदे में झुकती है, हुकूमत हाँ बोल दे तो गर्दन सजदे में झुकती है, हुकूमत गर ना कर दे तो कहाँ फिर सच की चलती है। हुकूमत गर ना कर दे तो फिर कहाँ। बहुत अच्छा। जिन चेहरों की, शुक्रिया सर, जिन चेहरों की मुस्कानें अक्सर दिल को अच्छी लगती हैं, जिन चेहरों की मुस्कानें अक्सर दिल को अच्छी लगती हैं, उन चेहरों की ही बातें अक्सर सच्चाई नहीं कहती, उन चेहरों की ही बातें अक्सर सच्चाई नहीं कहती। गूंगों की जुबान से भी जिनका जिक्र होता था, गूंगों की जुबान से भी जिनका जिक्र होता था, वो इंसा अब परिंदों की दुनिया में बसते हैं। वाह वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो इंसान अब परिंदों की दुनिया में बसते हैं। गूंगों की जुबान से भी जिनका जिक्र होता था, वो इंसान अब परिंदों की दुनिया में बसते हैं। चलो अब हम अदालत में ही मिलने जुलने की रख लें, चलो अब हम अदालत में ही मिलने जुलने की रख लें। घरों में अब वकीलों के सवालों का बड़ा डर है, घरों में अब वकीलों के सवालों का बड़ा डर है। आखिरी कुछ पंक्तियां हैं कि गफलत तुम नहीं रखना कि दुनिया तुमसे चलती है, गफलत तुम नहीं रखना कि दुनिया तुमसे चलती है। देखो सूरज तक चुपचाप ढल जाना चाहता है, तो सूरज तक चुपचाप ढल जाना चाहता है। और आखिरी 4 पंक्तियां आप सबकी नजर। सूरज डूबता है तो उगता भी है यारो, सूरज डूबता है तो फिर उगता भी है यारो। धूप की गलती पे यूं बरसात को ना मारो, धूप की गलती पे
यूं बरसात को ना मारो। डूब डूब कर मैं अब पार आया हूँ, डूब डूब करके मैं अब पार आया हूँ। खुद पर यकीन कर सकूं ये हुनर लाया हूँ, खुद पर यकीन कर सकूं ये हुनर लाया हूँ। कहने सुनने की मनाही अब न रखूंगा, कहने सुनने की मनाही अब न रखूंगा। इस बार मैं कहने को काफी माल लाया हूँ, इस बार मैं कहने को काफी माल लाया हूँ। बहुत अच्छा। शुक्रिया शुक्रिया। आप लोगों को कैसा लगा? क्या तृप्ति बहुत बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत खूबसूरत था यार। बहुत और हम शायरी में तृप्त होकर सुन रहे थे आपको। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। हम सब लोग इसके बाद छोटा बिल्कुल बिल्कुल सावन भैया, शुक्रिया आदर्श, शुक्रिया सावन सर। बहुत 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 खूबसूरत। जिस तरह से मैम आपने जो शुरुआत की थी, आगाज किया था कि पहली बार आपका परफॉर्मेंस है लाइव किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो आई थिंक उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा है वाकई, बहुत मुबारकबाद। बिल्कुल ये नहीं, ये कोई नहीं कह सकता। शुक्रिया बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत वर्धन के लिए बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। आप बहुत आगे जाएं, दुआएं हमारी। शुक्रिया सर, नमस्ते। बहुत बहुत थैंक यू तृप्ति मैम। मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहता हूँ कि तृप्ति जी अजमेर में मेयो कॉलेज में टीचर हैं। अरे वाह वाह वाह, अजमेर में इनके हस्बैंड हैं आशुतोष पारिक जी, वो अजमेर में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के अंदर संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और अजमेर के जो भी लोग होंगे वो समझेंगे कि ये मेयो कॉलेज और जीसीए का क्या मतलब, क्या इम्पोर्टेंस है अजमेर के अंदर। तो ये दो बहुत बड़ी संस्थाएं हैं, वहाँ से ये दोनों जुड़े हुए हैं। और आशुतोष साहब वो एक संस्कृत का वो भी चलाते हैं पेज, वहाँ पे संस्कृत सिखाते हैं वो सभी लोगों के लिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जो संस्कृत के प्रति इंटरेस्टेड है वो जरूर एक बार फॉलो करें उनको, सर को। मैं फॉलो करूंगा बिल्कुल पूरी तरह से। जरूर, बहुत अच्छा है ना सर, आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा बहुत अच्छा है, लैंग्वेज का बहुत अच्छा वहाँ पे। मैंने कई बार शेयर किया है। सर आप लोगों का अजमेर का जिक्र और ख्वाजा साहब का जिक्र ना हो तो मेरे ससुर साहब अक्सर कहते हैं कि यदि अजमेर का जिक्र हो जाए, तुम्हारा जिक्र हो जाए और ख्वाजा साहब का जिक्र ना हो तो तुम कर देना। तो मैं जिंदाबाद जिंदाबाद तृप्ति, जिंदाबाद तृप्ति, जिंदाबाद जिंदाबाद तृप्ति। इसे कहते हैं, यही हिंदुस्तान की पहचान है, यही है हमारा हिंदुस्तान। बिल्कुल यही सर, हिंदुस्तान है, यही हमारी मुस्तरका तहजीब। आप लोगों का घर है सर अजमेर, आइए आप लोग और हम सब मिलकर ख्वाजा साहब के चलेंगे तृप्ति के घर। आप अजमेर आए और बस मेयो कॉलेज में आके तृप्ति का नाम लें, आपका अपना घर है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ति मैम। इंशाल्लाह, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तृप्ति। थैंक यू सर। और अब मैं आवाज दे रहा हूँ हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और स्पेशल गेस्ट सावन शुक्ला सर को और सावन शुक्लिया को, क्योंकि हम उन्हें बड़ा भाई मानते हैं और उनकी शायरी से प्रभावित भी होते हैं कई लोग और हम लोग सब लोग। तो हम उन्हें आवाज देते हैं सावन शुक्ला भाई को कि वो अपनी शायरी से हमें आवाज है। सावन शुक्ला भाई। सावन, आपने बहुत अच्छी बात कही और हमारे सावन शुक्ला भाई से आपने कहा कि कुछ लोग प्रभावित होते हैं। मैं कहता हूँ जो प्रभावित नहीं होता है उन्हें शायरी की समझ ही नहीं है। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सावन भाई पढ़े। अच्छा सावन, मैं जा रहा हूँ, अब क्या करूंगा, रोज रोज सुनता हूँ तुमको तो माशाल्लाह। मैं इसीलिए मैं सिर्फ इसीलिए एक शेर पढ़ूंगा, बाकी मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ कुछ। नहीं भाई, मैं पूरा सुनना है तुम्हें। नहीं, यकीन मानिए अनस साहब, मैंने को नहीं पढ़ना है। आज हम जुबैर साहब को सुनते हैं। आज ये तो खैर है ही, जाहिर है ये तो है ही, लेकिन तुम्हें भी सुनना है भाई। नहीं सावन भाई प्लीज कोई एक सुनाइए। सावन मुझे उस गजल का एक मतला 2-3 शेर सुना दो, ठीक है? वो एक उस गजल का एक मतला 2-3 शेर सुना दो कि वो इस दिलेरी से तन्हा लड़ा था लश्कर से, वो सुना दो यार मुझे। बचने का भाई सावन, बहुत अच्छी गजल है वो। जुबैर साहब शेर सुनने मतलब है कि आप ही की नजर के तमाम जिस्म रवानी पे बोझ हो जाता,
पहला आप क्या बात है। जिस रवानी पे बोझ हो जाता, न तैरता तो मैं पानी पे बोझ हो जाता। वाह भाई वाह सावन, वाह 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 वाह, बहुत वाह। अच्छे भाई। बहुत अच्छा। और ये शेर मेरी औकात नहीं, फिर भी मैं राहत साहब की नजर करता हूँ कि हमारी बात अलग है, हमारी छोड़ो तुम, वाह हमारा मरना कहानी पे बोझ हो जाता। बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह, जियो भाई जियो, वाह सलामत। ये आप जुबैर साहब, आपकी फरमाइश के जरूरतों के लिए ताम झाम करते हुए, वाह जरूरतों के लिए तामझाम करते हुए, चटक गया है मेरा जिस्म काम करते हुए। क्या बात है। और वो जिस दलेरी से लड़ा, वो जिस दलेरी से तन्हा लड़ा था लश्कर से, जिस दलेरी से तन्हा लड़ा था लश्कर से, मैं कांपने लगा उसको गुलाम करते हुए। वाह 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 यार सावन, क्या वाह 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 वाह, बहुत खूब। वो जिस दलेरी से तन्हा लड़ा था लश्कर से, मैं कांपने लगा उसको गुलाम करते हुए। वाह वो वाह वाह एक वाह। हादिसा, वो एक हादिसा ऐसा हुआ कि उम्र कटी। वाह वो एक हादिसा ऐसा हुआ कि उम्र कटी, गुरेज करते हुए एहतराम करते हुए। आ हा 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 हा, वाह 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 वाह। एक मतला और एक शेर आखिरी, फिर हम जुबैर साहब की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो एक मतला देखें कि गया है छोड़ के ये कौन प्यास पानी में, गया है छोड़ के ये कौन प्यास पानी, ये किसने मारा है पत्थर उदास पानी में। यहीं पे बैठ के वो घंटों बातें करते थे, जहाँ दो लाशें मिली आसपास पानी में। वाह 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 सावन भाई, बहुत बढ़िया। आदर्श, आपका नंबर शुरू करें। वाह 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 वाह। और सदर मुशायरा जुबैर अंसारी साहब को पूरे शायरों की तरफ से और पूरी आज की महफिल की तरफ से हम लोग एहतरामन उन्हें आवाज देते हैं कि वो अपने कलाम से हमें नवाजें। जुबैर अंसारी साहब। बिल्कुल, बड़ी मोहब्बतें हैं आप लोगों की, बड़ा शुक्रिया दोस्तों। और सावन भाई, मैं एक्चुअली ऑन द वे हूँ, तो ये मेरा मोबाइल धोखा देने, जी मोबाइल मेरा ये धोखा देने वाला है जी। मुझे मेरा एक भी सर मिनट यही दो, हाल है। मैं दूसरे मोबाइल पे जैसे ही ये बंद होगा 1 मिनट में मैं दूसरे मोबाइल से कनेक्ट होता हूँ, ठीक है। जी जी जी। और मैं 1 मिनट दीजिए मुझे प्लीज बस। आपके उसमें है जी जुबैर साहब। जी जी सर। जी सर, स्वागत है। हाँ दोस्तों, हो गया, मैंने कर लिया मैंने। जी सर, स्वागत है। हाँ चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी मोहब्बतों से आप लोग जो है एक दूसरे को सुन रहे हैं।
اور کیا کیا आशार सुनने को मिले हैं। सबसे पहले तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी सर। मैं और जी सावन भाई को और आदर्श भाई जो बेहतरीन निजामत कर रहे थे शुरू में, मैं अब देख नहीं पा रहा हूँ उनको, शायद वो सर मेरा लोड और जी अच्छा, सर मेरा डाटा नेट डाटा जो है वो वैसा हो गया है लिमिट जी। उसकी, तो मैं इस वजह से लो तो- डाटा मोड पे आपको सुन रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। और हमारे ये क्या नाम था, अमरोही साहब जो थे, क्या शानदार उन्होंने कलाम पढ़ा, तबीयत खुश हो गई। अनस फैजी भाई तो समा बांध देते हैं हर, और आज तो तृप्ति ने जो है पहली बार जो कह रही थी, उन्होंने भी बड़ा शानदार जो है उनकी पेशकश की। और सावन तो मेरा छोटा भाई है, तो मेरा हीरो है यार। ये तो मैं तो कहता हूँ ना कि अगर इसके शेर किसी को समझ में नहीं आते तो फिर उसको शायरी की समझ नहीं। सही बात है। चलिए तो मैं कुछ अशार, चंद मुतफर्रिक अशार आपकी समातों के हवाले करता हूँ कि मेरे खुदा मेरे हाथों में वो हुनर दे दे। वाह। मेरे खुदा मेरे हाथों में वो हुनर दे दे, मैं जिससे हाथ मिलाऊं सब उसके गम ले लूं। मैं जिससे हाथ मिलाऊं सब उसके गम ले लूं। सावन भाई मुझे बताइए, आवाज सही आ रही है एकदम? बिल्कुल बहुत अच्छी आ रही है। बिल्कुल सही आ रही है सर। वो जिसके अंदर आपने सावन का काफिया लगाया ना, वो वाली गजल सुनाए। जी। अच्छा वो यार मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं सुना देता हूँ कि ये बात करेंगे। चलिए मैं सुनाता हूँ। सावन भाई मैं कुछ करता हूँ उसके लिए। और चलिए मैं एक आगे बढ़ता हूँ। एक रुबाई सुनिए साहब। आज चाहे सब लोगों का डेटा खत्म हो जाए, लेकिन आपको वो पढ़ना पड़ेगा। अच्छा ये ऐसा कुछ है, तो मैं देख लेता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। तो मैं एक रुबाई पेश करता हूँ, सुनो। अनस फैजी भाई और अमरोही भाई है हमारे, समाप्त करें कि छोड़ी ही नहीं कोई कहानी हमने। वाह। छोड़ी ही नहीं कोई कहानी हमने, ईमान की रखी है निशानी हमने। छोड़ी ही नहीं कोई कहानी हमने, ईमान की रखी है निशानी हमने। और किरदारे हुसैनी को जिया है हर पल, किरदारे हुसैनी को जिया है हर पल। मांगा नहीं दरियाओं से पानी हमने, मांगा नहीं। वाह वाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। मांगा नहीं जी कि छोड़ी ही नहीं कोई कहानी हमने, किरदारे हुसैनी को जिया है हर पल। मांगा नहीं दरियाओं से पानी हमने, मांगा नहीं दरियाओं से पानी हमने। एक और कथा पेश करता हूँ मैं कि रख तू खौफे आखिरत फिर कर जो चाहे दिल तेरा। रख तू खौफे आखिरत फिर कर जो चाहे दिल तेरा, देख फिर रास्ता तकेगी खुद बखुद मंजिल तेरा। रख तू खौफे आखिरत फिर कर जो चाहे दिल तेरा, देख फिर रास्ता तकेगी खुद बखुद मंजिल तेरा। और डूबने का गम मुझे क्यों हो जरा भी है जुबैर, डूबने का गम मुझे क्यों हो जरा भी है जुबैर। मैं तेरा कश्ती तेरी दरिया तेरा साहिल तेरा, मैं तेरा कश्ती तेरी दरिया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। वाह। तो आगे बढ़ते हैं दोस्त एक गजल की तरफ। गजल का मतला कुछ यूं कहा है कि समाप्त करें कि जी कि है नादा शम्स से पूछें तमाजत किसको कहते हैं। है नादा शम्स से पूछें तमाजत किसको कहते हैं, अगर ये है समझदारी हिमाकत किसको कहते हैं। है नादा शम्स से पूछें तमाजत किसको कहते हैं, अगर ये है समझदारी हिमाकत किसको कहते हैं। और शेर सुने कि मैं हूँ महिवाल रांझा मजनू और फरहाद भी मैं हूँ। सावन भाई शेर सुनो। मैं हूँ महिवाल रांझा मजनू और फरहाद भी मैं हूँ, मुझे अब तुम बताओगे मोहब्बत किसको कहते हैं। मुझे बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और एक मतलब सुनिए कि यूं कहा है कि खुश्क जुबां है तिश्ना लब है खाली पैमाने लोग। वाह। खुश्क जुबां है तिश्ना लब है खाली पैमाने लोग,
बस्ती बस्ती ढूंढ रहे हैं महफिल और मैखाने लोग, बस्ती बस्ती ढूंढ रहे हैं महफिल वाह और वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया दोस्तों। और शेर सुनिए कि प्यार की भूखी है ये दुनिया, प्यार लुटाकर देखो तो, प्यार की भूखी है ये दुनिया, प्यार लुटाकर देखो तो, भाई से बढ़कर अपने बन जाते हैं अनजाने लोग, भाई से बढ़कर अपने बन जाते हैं अनजाने लोग। और शेर यूं हुआ है कि इश्क की खातिर सब करते हैं जीते हैं मर जाते हैं, इश्क की खातिर सब करते हैं जीते हैं मर जाते हैं, इस दुनिया में कम मिलते हैं हम जैसे दीवाने लोग, इस दुनिया में कम मिलते हैं हम जैसे दीवाने लोग, इस दुनिया में कम मिलते हैं हम जैसे दीवाने लोग। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बड़ी मोहब्बतें आप लोगों की। बड़े अच्छे इस प्रोग्राम के लिए मैं एक बार फिर से शायरों का शहर जो पेज है हमारे सावन भाई का, पूरी टीम को और सावन भाई को खुसूसी मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं। जी जी। और क्योंकि दोस्त नेटवर्क बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है आपको मेरी आवाज़ भी प्रॉपर नहीं सुनाई दे रही होगी, तो मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम का यहीं पे इख्तिताम अगर कर दिया जाए तो बेहतर है। नाजीना हमें आपकी आवाज आ रही है, वो गजल सुना दी जाए, वरना ये जी बहाने नहीं चलेंगे। जी सावन भाई, वो मुझे याद नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, मैं क्या करूं, मेरी गलती थोड़ी है। अच्छा, ये आपकी गलती नहीं है। हाँ सावन भाई, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं दूसरे उसमें मोबाइल में देखने की कोशिश करता हूँ, मिल जाती है तो मैं सुना देता हूँ यार सावन भाई। मैं देखता हूँ। चाहे आदर्श का सारा नेट पैक खत्म हो जाए, लेकिन आपको सुनाना तो पड़ेगा। नहीं, नेट पैक का इशू नहीं है, बस ये है कि वो मेरे को एक बार याद नहीं पड़ रही है मेरे को, तो मुझे याद आती है मैं कि मतला सुनो, मतला याद आ गया सावन, मतला सुनो तब तक मैं देखता हूँ कि मतला यूं है कि दिल से दिल जब बात करेंगे सावन आएगा, दिल से दिल जब बात करेंगे सावन आएगा, दिल से दिल जब बात करेंगे सावन आएगा, जब जब दिन को रात करेंगे सावन आएगा, जब जब दिन को रात करेंगे सावन आएगा। और यार मुझे याद नहीं आ रहा, सावन अच्छा फंसा दिया यार तुमने। मैं देखता हूँ अगर आप मिल जाती है मुझे तो मैं सावन में। जी जी जी, अरे इसकी फरमाइश बड़ी क्या बताऊँ, अब इनकी फरमाइश मानना भी जो है वो तो एकदम वाजिब जैसा हो जाता है, क्या किया जाए। अरे सावन आएगा, मिल जाओ भाई, मिल जाओ यार। तो नहीं मिल रही, कोई बात नहीं यार सावन भाई, वो नेटवर्क बड़ा इशू है ना दूसरे फोन पे, वो इतना स्लो चल रहा है, मैं उसको सर्च नहीं। जी जी, मैं सावन भाई, मैं फिर किसी दिन आपको सुनाता हूँ, फिर मैं पेश करता हूँ। मैं चलो एक चलते चलते एक मतलब 2-3 शेर और सुन लीजिए, मैं सुना देता हूँ कि जी जी समाप्त करें कि ये पल थमसा गया है और मैं हूँ, ये पल थमसा गया है मैं हूँ, मुसलसल एक कला है और मैं हूँ, मुसलसल एक कला है और मैं हूँ। और शेर सुने कि मोहब्बत की डगर पे चल के देखा, मोहब्बत की डगर पे चल के देखा, मेरा ही नक्श पा है और मैं हूँ, मेरा ही नक्श पा है और मैं हूँ। और शेर यूं हुआ है कि मेरे जैसा नहीं कोई जहां में, मेरे जैसा नहीं कोई जहां में, मुकाबिल आईना है और मैं हूँ, मुकाबिल आईना है और मैं हूँ। और ये दिन तो हश्र जैसा लग रहा है, ये दिन तो हश्र जैसा लग रहा है, फकत मेरी खता है और मैं हूँ, फकत मेरी खता है और मैं हूँ। और शेर आखिर यूं हुआ है कि मैं चलते चलते आप पहुंचा कहाँ तक, मैं चलते चलते आप पहुंचा कहाँ तक, जहां मेरा खुदा है और मैं हूँ, जहां मेरा खुदा है और मैं हूँ। मैं चलते चलते आप पहुंचा कहाँ तक, जहां मेरा खुदा है और मैं हूँ। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बड़ी नवाजिश, करम, मेहरबानी।
और आप सबको एक बार फिर इस पूरे और खुसूसी तौर पे शायरों का शहर जो पेज है हमारे सावन भाई का, उसकी पूरी टीम, सावन भाई और आप सभी शिरकत करने वाले सभी शोरा हजरात का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस बेहतरीन और शानदार प्रोग्राम की जो आज़ादी की उसमें था उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आदाब दोस्तों। जी सावन भाई। अभी आदर्श का नेट खत्म हो गया है तो इसलिए वो जा चुका है, तो मैं आदर्श की तरफ से मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। जुबैर साहब, अंदाज साहब, अनस भाई, तृप्ति जी, आदर्श, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले ही किसी प्रोग्राम में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। सावन आएगा गजल के साथ, सावन आएगा गजल के साथ। इस खूबसूरत नमस्कार आपकी पूरी टीम को